Topic 1, calculation of NPSR. Whenever a partner retires from the firm, we have to find out the new ratio of remaining partners. How to find out the new ratio of remaining partners? There will be certain different situations or cases. So we'll discuss one by one case here. Case 1. To find out NPSR of remaining partners after a retirement of one partner. Very simple cases are there. Number 1, there will be 5 cases. Today we'll finish one by one. First case, when nothing is specified for NPSR, where in the question after retirement of one partner. This is the first situation when after retirement of a partner, it is nothing mentioned or nowhere mentioned in which ratio the remaining partner will share future profit and loss. Then what we do? You can learn, or we can learn here by example. Suppose in a firm there were 3 partners, X, Y and Z. Very simple. The ratio was like this: 4 is to 3 is to 2. Let's say there were 3 partners, X, Y and Z, and they were sharing profit and loss in the ratio 4 is to 3 is to 2. And now it is written in the question, Mr. Y retired. If it is written there, Mr. Y retired from the firm, and after this nothing is mentioned regarding new ratio of partner X and Z, then what we do here? In this situation, the partner who goes out of the firm, just circle it out. And now tell me, what will be the ratio of Y and Z, sorry, X and Z after retirement of Y? Can anyone tell me? Y firm से चला गया. Yes. Anyone? What will be the ratio between X and Z? पक्का? एग्जाम ऑप्शन तो ये नहीं होगा. एग्जाम ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही है. Very good. 4 is to 2 is the remaining ratio. This becomes their new ratio, but this is divisible by 2, so the ratio will be 2 is to 1. Very simple situation. Whenever in a question one partner goes out of the firm, then nothing is mentioned regarding about the new ratio. Then in that situation, the remaining partner will share their profit and loss in the same proportion as they were doing earlier. Suppose इस क्वेश्चन में अगर Z चला जाता तो X और Y का रेशियो क्या होता? 4:3 होता. सपोज इस क्वेश्चन में X चला जाता तो Y and Z का रेशियो क्या होता? 3:2. तो बिकॉज इस क्वेश्चन में Y गेट्स रिटायर फ्रॉम द फर्म, तो Y को आपने आउट कर दिया. रिमेनिंग बचे X एंड Z, उनका जो रेस्पेक्टिव रेशियो था वही उनका न्यू रेशियो बन जाएगा. बट इट इज अगेन डिविजिबल बाय 2, तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? Which is 2:1. The first situation is over now. Okay, whenever in a question nothing is specified regarding NPSR of remaining partners, then what we do? The respective ratio of remaining partner will be their new ratio. I think clear? Done. इसको उतार लें आप लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन को. और very simple. Correct. Now second situation might be, which is more easy compared to this one. When NPSR is specified in the question, ये तो और भी आसान हो गया. जब नहीं गिवन था तो जो बचा था वही उनका न्यू रेशियो है. बट हियर अगर आपको NPSR क्वेश्चन में मेंशन हो तो व्हाट वी डू? वेरी सिंपल. व्हाट वी डू? जो गिवन है वही ले लेंगे हम. अगेन सेम एग्जांपल. X, Y, Z were partners in the ratio 5:3:2. If it is given Z retired from the firm, keep writing there. Or if nothing mentioned, so that is the first situation. हम क्या मानेंगे? X and Y का ratio will be 5:3 अगर नहीं लिखा हुआ तो. But if it is mentioned in future, X will get
70% प्रॉफिट। अब मुझे बताओ, टेल मी व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इन फ्यूचर। 7:3. वेरी गुड, 7:3. वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? बिकॉज अगर इन फ्यूचर वो जो भी कमाएंगे उसका 70% अगर एक्स का है तो ऑफकोर्स 30% किसका होगा, वाई को मिलेगा। इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, सो व्हाट वी डू, इट इज 7:3। और अगर यूं लिखा होता कि फ्यूचर में दोनों इक्वल शेयर करेंगे तो 1:1। सो इफ नथिंग मेंशन तो जो बचा वही रेशियो मानेंगे, और इफ मेंशन है तो फिर दिक्कत ही कहां गई आपको डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये दीज सिचुएशन तो बहुत रेयरली एग्जाम आती है, बट बुक में है क्वेश्चन, इसलिए हम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो वेरी सिंपल, नथिंग मेंशन जो है वो है, मेंशन है तो जो गिवन कर रखा आपको उसको रेशियो मानेंगे। बट थर्ड सिचुएशन ऑनवर्ड आपको निकालना पड़ेगा। From third situation onwards, what we have to do? We have to find out the NPSR. When only one partner gets the share of retiring partner. When only one partner gets the share of retiring partner. How to do this? X, Y, and Z. The ratio was 5:4:2. Let's say. And suppose it is given to you, Mr. Y retired, और साथ ही लिखा हुआ है his share taken by Z only. Then who will tell me the answer? सबसे सिंपल वे है, फर्स्ट नथिंग मेंशन। क्या होगा न्यू रेशियो? हाउ टू फाइंड आउट? यस, कैसे आएगा? व्हाट वी डू? यस, द शेयर ऑफ y विल बी एडेड इन शेयर ऑफ z, बिकॉज z ने उसका शेयर ले लिया था। तो नाउ हाउ टू फाइंड आउट? वेरी सिंपल वे, x का पहले से था 5/11 और z का था पहले से 2/11, और जो y का जो शेयर था 4/11 किसने ले लिया? टेकन बाई z। तो प्लस करेंगे z के अंदर 4/11, तो बताओ क्या आंसर आएगा? सो हियर 5/11 तो हो गया, x का वही रहेगा, और जबकि z का कितना हो जाएगा? 6/11। तो द न्यू रेशियो विल बी 5:6। टेल मी, कोई प्रॉब्लम किसी को भी? आई डोंट थिंक सो। बहुत सिंपल लेसन है, विद इन 5 to 6 डेज में इसको पूरा करेंगे, है ना। मोस्टली ज्यादा बड़ा लेसन भी नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी स्टेप सेम होती है। तो विद इन 5 to 6 डेज लेसन पूरा करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे रेजोल्यूशन, बिकॉज़ आई नीड 4 to 5 months फॉर कंपनी अकाउंट्स, 3-4 months एटलीस्ट फॉर कंपनी। सो डन। एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ। स्टेप 1 क्लियर? दोबारा रिवाइज कर लो। एक्स वाई जेड का रेशियो है ना 7:5:3 था, बाय द वे जेड चला गया, तो एक्स जेड का वाई का रेशियो क्या होगा? 7:5। ये सिचुएशन अगर यूं हो, एक्स वाई जेड का रेशियो वही 7:5:3 था, और लिखा हुआ है दोनों फ्यूचर में इक्वलिटी शेयर करेंगे, ये चला गया तो इक्वल का मतलब 1:1 हो जाएगा। इफ इट इज गिवन टेकन बाय वन पार्टनर, उस पार्टनर में ऐड कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 4 और केस नंबर 4, एग्जाम में पांचों में से कोई एक केस बनेगा, सारे नहीं बनेंगे, आइदर दिस वन और दिस वन, और रिमेनिंग 2। केस सी डी क्या हो सकता है? व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इज इक्वली टेकन बाय remaining partners. Keep writing there, don't see ना, लिखते भी जाएं, सुनते भी जाएं, करते भी जाएं, देखते भी जाएं, हर चीज करनी पड़ेगी। Everything should be there. When retiring partners share is equally taken by remaining partner, कोई एक पार्टनर नहीं ले और दोनों पार्टनर या तीनों पार्टनर ले, वो भी इक्वली बांट के ले, तो क्या होगा? जैसे सपोज इन अ फॉर्म देयर वर 3 पार्टनर्स और 4 पार्टनर दिस टाइम, ओके ABCD कर लेता हूं मैं, और रेशियो वाज 4:3:2:1, लेट्स सी। और सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी रिटायर्स, ओके, उसको हमने रिटायर्ड कर दिया, लिखा हुआ क्वेश्चन में कि ही रिटायर्स या सी रिटायर्ड, और आगे भी लिखा हुआ है उसके शेयर को टेकन इक्वली
बाई ए एंड बी, और सी का जो शेयर था उसको ए और बी ने इक्वली ले लिया। तो व्हाट वी डू हियर, कैन टेल मी एनीवन? सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 2/10 into half. यस, बिकॉज सी का जो शेयर था 2/10 उसको हम दो हिस्से बांट लेंगे, टू पार्ट से बांट लेंगे इक्वली, 1/2 करेंगे। सी का जो 2/10 है उसको आप डिवाइड कर लो। हाउ टू डू, आई एम डूइंग हियर ऑन द बोर्ड। सी का जो शेयर था 2/10 उसके टू पार्ट्स कर लो। 2/10 का हाफ ऑफ कोर्स 1/10 ही होता है, ये तो मिला है ए को, और 2/10 का हाफ अगेन 1/10 ये मिलेगा बी को। और अगर तीनों पार्टनर लेते इक्वली तो व्हाट शुड आई डू एनीवन? अगर ए बी और डी तीनों लिखते इक्वली तो यस वेरी गुड 1/3 करते, फिर ना 1/3, 2 की जगह 1/3 करते। बेसिक मैथमेटिक्स सबको आती है। सो हियर ओनली ए को मिला और ओनली बी को मिला, तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ ए? इट वाज 4/10 plus 1 by taken from C. Now it is 5/10. B पहले 3/10 था, 1/10 taken from C. So now it is 4/10. और D का तो already given 1/10, LS 1/10 ही रहेगा. So what is the new ratio? Anyone? That is 5:4:1. Correct? The new ratio is what? 5:4:1.